So let us start with the topic of soil erosion. कल हमने थोड़ा सा देखा था बेसिक डेफिनेशन. Today we are going to discuss in detail about soil erosion. So we are going to discuss about soil erosion now. What do you mean by erosion? First, किसी चीज का टूटना, धीरे धीरे करके कटना या टूटना. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट सॉइल इरोजन, व्हेन द uppermost layer of the soil gets drained or gets eroded because of some natural agents. अब natural agents में either wind or water. अब इसके अलावा कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो अपर मोस्ट लेयर टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, वो क्या होने लग जाती है, इरोड होने लग जाती है, धीरे धीरे हटने या टूटने लग जाती है. इट मे बी बिकॉज ऑफ we have already discussed, it may be because of mining, it may be because of over irrigation and many more reasons, industrial waste. So let us discuss. The process of soil formation and erosion, basically it goes on simultaneously. साथ में चलती erosion और formation दोनों साथ में चलता रहता है. But what happens sometimes कि जब ये बैलेंस गड़बड़ाने लग जाता है, जब ये बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, क्या फॉर्मेशन और इरोजन का, तब ये बैलेंस जब बिगड़ता है तब क्या होने लग जाता है, इरोजन की जो स्ट्रेंथ या इरोजन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में होने लग जाता है. फिर क्या होता है, वहाँ की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो अब हटने लग जाती है. आपको ऐसा लगने लग जाता है कि वहाँ की जो फर्टाइल लेयर है वो हट चुकी है कंप्लीटली. इट मे बी बिकॉज ऑफ नेचुरल एजेंट्स और मे बी बिकॉज ऑफ ह्यूमन कॉजेस और एक्टिविटीज. नाउ इफ यू टॉक अबाउट नेचुरल कॉजेस, क्या हो सकते हैं? First of all, how can you define in simple words the removal of top layer of the soil? In bracket you can write fertile. Now what are the causes? There are two main causes: natural agents and second human activities. Natural agents में no doubt wind, water, glacier, and if you talk about human activities, mining, over irrigation, over grazing, all these are part of human activities. Now let us start with the first, wind erosion. Now we are going to discuss about the first part, that is wind erosion. If you are writing, write it down fast. This is the simple and one line definition जिसको आप क्या कर सकते हैं, if it is in descriptive form, थोड़ा आप उसको extend करके अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. Now he is going to come and read the first type, that is wind erosion. Uniform. Come. You can take your book also. You can read from there. Wind erosion. Is there any point like that? Then read from there. नाम देखो वहाँ पे ऐसा देखिए. Wind erosion. It is a common cause of land degradation in the arid and semi-arid grazing lands. It is one of the processes leading to this desertification. Significant wind erosion occurs when strong winds blows over light textured soils that have been heavily grazed during periods of drought. Suspension, sedition and surface creep are the three types of soil movement which
occur during wind erosion. To tackle the problem of wind erosion, some ways of conservation are taken. These are strip cropping. Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This breaks the force of the wind. Shelter belts. Planting rows of trees to create shelter along the edge of fields. This helps in reducing the speed of wind. Thank you. So this is the first part of first agent we can say which is responsible for soil erosion, and that is wind erosion. So basically it is a very common factor, common agent by which the soil erosion occurs. And no doubt as per the name wind erosion है तो responsible agent कौन है? Wind. Now it is ये ऐसी प्रोसेस है जो कि क्या करती है, डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ती है. नाउ डेजर्टिफिकेशन लाइक जहाँ पर एकदम ड्राई एरिया होता है या फिर एरिड सोइल जहाँ पर होती है. इट मीन्स देयर इज नो मॉइस्चर इज अवेलेबल. अब क्या होगा, जो सॉइल है वो बहुत ड्राई है. नाउ विंड क्या करेगी, बाय फ्लोइंग वो धीरे धीरे क्या करेगी, उस ड्राई सॉइल को वहां से उड़ा के ले जाके दूसरी जगह पर इकट्ठा करती चली जाएगी. और क्या होगा, उस जगह से वो पूरी सॉइल धीरे धीरे टॉप लेयर जो है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी. और वो फर्टिलिटी उसकी धीरे धीरे उस पर्टिकुलर लैंड की खत्म होती चली जाएगी. तो अब बेसिकली इसीलिए क्या होता है कि इस टाइप के इरोजन में सॉइल जो विंड होती है वो एक नेगेटिव रोल प्ले करती है. और क्या करती है, उसको जो ड्राई सॉइल है जो कि फर्टाइल एलिमेंट से कंटेंट है वो क्या करती है, उसको उड़ाकर लेके चली जाती है. और वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे लैंड डिग्रेडेशन भी शुरू हो जाता है. नाउ द मेन कंजर्वेटिव पॉइंट्स थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ विंड इरोजन. ऐसे पॉइंट जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इरोजन को रोक सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल the thing is we are discussing is wind erosion. No doubt we have already discussed the erosion caused by wind, that is wind erosion. Apart from that ये होता कहाँ पे, जनरली जहाँ पर एरिड सॉइल हो, एराइड सॉइल या फिर ड्राई डेजर्टिफिकेशन वाले एरिया. एंड अब जब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करती है तो क्या करती है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, एज आई ऑलरेडी थॉट कि वो क्या करती है, वहाँ की सॉइल को उड़ा के चली जाती है. और जनरली ये तभी होता है जब ड्रॉट, सूखा पड़ता है, फेमाइन एकदम सूखा वाला एरिया जहाँ पर होता है या फिर डेजर्ट वाला एरिया होता है, वहाँ पर ये प्रोसेस ज्यादा होती है. नाउ कंजर्वेटिव पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे थे कि इनको रोका कैसे जा सकता है. स्ट्रिप क्रॉपिंग. लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट to grow between the crop. This breaks the force of wind. अब क्या होता है, पहला जो पार्ट है कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव मेजर्स टू प्रिवेंट विंड इरोजन. पहला तो क्या था, स्ट्रिप फार्मिंग या क्रॉपिंग, से क्रॉपिंग. स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है, जब वहां पर कहीं अगर जो लैंड है तो वहां पर क्या करेंगे, वो ग्रासेस को लगने देंगे, उगने देंगे. लाइक जो फार्मिंग वगैरह जहाँ पर होती है ऐसे एरिया में, ड्राई एरिया में, वहां पर क्या होता है, वो जो क्रॉप्स होते हैं उसके बीच बीच में ग्रासेस को लगने देते हैं. जिससे क्या होता है, उसकी रूट्स क्या करती है, होल्ड करके रखती है सॉइल को और वो उसको उड़ने से या फिर विंड की एक्शन से रोक लेती है. उससे क्या हो जाता है, वो जो सॉइल है वो वहां पर कंजर्व हो सकती है. फर्स्ट मेजर इज स्ट्रिप क्रॉपिंग. एंड सेकेंड बात करें तो शेल्टर बेड्स. प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर अलॉन्ग द एज ऑफ फील्ड. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ विंड. अब क्या होता है, जो खेत की बाउंड्रीज होती है या फिर रोज वगैरह होती है, उसमें क्या करते हैं, पेड़ जनरली खेत के बीच में तो नहीं लगाए सकते, आसपास की जगह पर ये लगाए जा सकते हैं. उससे क्या होता है, वो जो विंड होती है उसकी स्पीड को ब्रेक कर देते हैं बीच में. उससे क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी तो वो जितनी क्वांटिटी में सॉइल को उड़ाकर ले जाती है उतनी क्वांटिटी में नहीं ले जा पाएगी. एंड इन दिस वे जो वहाँ की सॉइल है वो क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी. तो उसी को क्या कहा जाता है, शेल्टर बेल्ट. जब लाइन से पेड़ों को लगा दिया जाता है. शेल्टर जैसे कि उसका नाम है, शेल्टर मीन्स क्या होता है, जहाँ पर शरण ली जा सकती है, शेल्टर बेल्ट. तो वो क्या करते हैं, सॉइल को शेल्टर देके बचा लेते हैं. So these are the two conservative measures to prevent wind erosion.
विच वन? स्ट्रिप क्रॉपिंग में जो मेन क्रॉप्स होते हैं उसके बीच बीच में जो ग्रासेस होती है उसको वो हटाते हैं, नहीं लगे रहने देते हैं, जिससे क्या होता है जो बीच की जो सॉइल जो कि उड़ सकती है हवा से उसको क्या हो जाता है वो सॉइल को होल्ड करके रख लेते हैं, ग्रास की रूट्स। तो वो क्या करती है जो विंड जब आती है तो वो उड़ा नहीं पाती उस सॉइल को और वो कंजर्व होता है। So this was about wind erosion. Now we are going to discuss about the next point of natural agent, that is water. Erosion caused by water. Write it down fast. So write it down fast. Okay, so now let us move towards the next type of erosion, that is caused by water. No doubt ये soil erosion ही, water erosion मत समझना कि water धीरे धीरे कट रहा है, but the agent responsible is water. That is why I am writing in that way. Don't think ये water erosion. Next, who is going to come and read willingly? Don't waste the time. Water erosion. Erosion of top layer of soil caused by running water is called water erosion. Water flowing down over a large area causes the top soil to be washed away. This is called sheet erosion. Gully erosion occurs by water flowing down through clay soil that causes deep channels for water flowing down. This causes land unfit for cultivation and is known as bad land. Such is the case in the Chambal Basin, where the gullies are known as rewanis. Ways of conservation are plantation of trees through community participation like it happened in Panchkula district of Haryana. Integrated watershed development through participatory planning like in Jhabua district of Madhya Pradesh. Thank you. Now erosion caused by water is known as you can say water erosion whenever the top layer of the soil is eroded by the flow of water. जब पानी अपने स्पीड में बहता है वो क्या करता है अपने साथ में सॉइल के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, आप देखना जब पानी कहीं से निकलता है तो सॉइल के फाइन पार्टिकल्स को हटा लेता है, वहाँ पर पत्थर पत्थर टाइप भी रह जाते हैं. So that particular thing you can say is water erosion. Now the water flowing down over a large area causes the topsoil to be washed away. This is called sheet erosion. अब क्या होता है जब ज्यादा बड़े एरिया में लार्ज एरिया में क्या होता है टॉपसॉइल को वो क्या करता है बहा के वॉश अवे बहा के लेके जाता है एंड वो जो पर्टिकुलर होता है वो क्या होता है शीट इरोजन. नाउ अनदर टाइप इज गली इरोजन. गली इरोजन कॉजेज बेसिकली इसके भी दो पार्ट्स हैं, शीट इरोजन एंड गली इरोजन. लेट मी राइट. Second one is okay. Now if we talk about gully erosion, it occurs by water flowing down through clayey soil that causes deep channel of water flowing down. अब क्या होता है अगर वहां पर clayey soil है, it means stones या फिर छोटे मोटे कंकर्स वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा वहां पर डीप चैनल्स बन जाएगी, बीच में बड़ी सी लाइक आप देखते हो बड़ी बड़ी या तो क्रैक्स वाली सिचुएशन बन जाती है या फिर और ज्यादा टाइप पूरे जस्ट लाइक गली अपन अपनी लैंग्वेज इफ वी टॉक अबाउट इन आवर लैंग्वेज तो पूरा ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ पर इतनी बहुत ज्यादा बड़ी वाली गैप बन जाती है. आप नदियों के आसपास वाले एरिया में देखना जहाँ पर नदी का फ्लो रहता है वहाँ के आसपास की अगर वो मिट्टी पूरी क्लेई सॉइल है, क्या ऐसे पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं बाइंडिंग एजेंट्स जो क्या करते हैं सॉइल को बांध के रखते हैं, तो क्या होगा वो उतना एरिया पूरा ऐसा हो जाएगा कि अंदर पूरा ऐसा गड्ढे जैसा हो गया. तो वो जो चीज होती है दैट इज
The next second type of erosion, that is gully erosion. This causes land unfit for cultivation and is known as bad land. और जब इस तरीके से वो जो लैंड है वो क्या हो जाती है, अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन को, उसी को क्या बोलते हैं, बैड लैंड. ईशान, योर क्वेश्चन. आप बोल रहे तो कुछ नहीं होता. I didn't see in the book. तो ये जो बैड लैंड है वो क्या होता है, यही डिफरेंस है कि बैड लैंड कैसे बनती है, वाटर के इरोजन, वाटर जब एजेंट होता है इरोजन के लिए तब ये बैड लैंड, और जब वो उसकी वजह से लैंड अनफिट हो जाए कल्टीवेशन के लिए उसको क्या कहा गया है, बैड लैंड. इरोजन की वजह. हाँ, और द इरोजन कोज्ड बाय वाटर. अब ऐसे जो एग्जांपल्स है वो चंबल जो है, चंबल वाला एरिया, वहां पर ये जनरली देखने के लिए मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो वहां पर जो गलीज है उनको अलग नाम से बोला गया, दैट इज रेवाइन्स. और इसके अलावा कुछ कंजर्वेटिव मेजर्स भी है, हम वो भी देख लेते हैं. नो डाउट प्लांटेशन जो है वो अल्टीमेटली क्या है, हर चीज का सॉल्यूशन है, चाहे वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का हो, चाहे वो किसी भी कारण का हो, फॉरेस्टेशन के लिए करना हो. अल्टीमेटली एवरी इन्वायरमेंटल और जियोग्राफिकल प्रॉब्लम हैज वन परमानेंट सॉल्यूशन, दैट इज plantation. So no doubt here also we have plantation as first solution, because planting trees through community participation like it happened in Panchkula district of Haryana. So first measure, conservative measure you can say, plantation, or you can write there community plantation. Community plantation मतलब कि जब सब मिलकर क्या करते हैं, इकट्ठा पूरे सारे लोग मिलकर इकट्ठा प्लांटेशन करते हैं. अभी आपने ये वाला वर्ड कोरोना के ट्रांसमिशन में भी सुना होगा, कम्युनिटी स्प्रेड. कम्युनिटी स्प्रेड से बचना, इट मींस जब वो पूरे सबको इकट्ठे फैलने लग जाते हैं, सारे लोगों को पूरे साथ के साथ में, दैट इज कम्युनिटी. So here the first one is community plantation. Let us see, like community plantation जो कि किया गया था पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, वहां पर ये वाला मेजर लिया गया था ताकि क्या किया जा सके, सॉइल इरोजन को रोका जा सके. एंड अनदर एग्जांपल ऑफ मध्य प्रदेश, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग लाइक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. झाबुआ इज नॉट फार फ्रॉम अस. तो वहां पर ये इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट किया गया ताकि क्या किया जा सके, वाटर के फ्लो को क्या कहीं पर दूसरी जगह डायरेक्ट करके उसको क्या किया जा सके, उसके फ्लो को या तो कम कर ले या फिर उसको यूटिलाइज कर ले फ्यूचर यूज के लिए. तो यू कैन राइट द अनदर पॉइंट एज इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट. नो डाउट बिकॉज वाटर इज द एजेंट व्हिच कॉजेस दिस टाइप ऑफ इरोजन. तो वाटर को क्या कर दो, दूसरी डायरेक्शन में डायरेक्ट करके यूटिलाइज कर दो. इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट. दिस इज द सेकंड conservative measure to be taken to prevent erosion caused by water. So these are all about natural agents. अब human activities भी है जो जिसकी वजह से क्या होता है, erosion होता है. So we will discuss that after few seconds. I hope so all of you have returned. So now let us some human causes because of which soil erosion occurs. First, no doubt अगर एफॉरेस्टेशन किसी का सॉल्यूशन है तो सब चीजों का मेन कॉज भी क्या हो जाएगा, एफॉरेस्टेशन. सेकंड, ओवर माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, ओवर कंजप्शन.
industrial waste Natural process. and construction. These are all means ultimately human activities are more dangerous. So these are all points which increases the soil erosion. Deforestation क्या होगा, पेड़ धीरे धीरे कटते चले जाएंगे, they will not be able to hold the soil और उससे क्या हो जाएगा, soil erosion. Over mining हम देख रहे हैं in MP also we are witnessing many over mining activities, जैसे कि रेत का आपको जनरली पेपर में आता रहता है कि रेत की खदानें इतनी ज्यादा वहाँ पे लोग बिना परमिशन के इसको माइनिंग करे जा रहे हैं. माइनिंग इज अल्टीमेटली जमीन से खोद के कुछ मिनरल्स को निकालना. इट मे बी डिफरेंट मिनरल्स, इट मे बी डिफरेंट रिसोर्सेज. नेक्स्ट है ओवर इरिगेशन. ओवर इरिगेशन में क्या करना, जितने इरिगेशन के लिए पानी की जरूरत है उससे ज्यादा क्या कर देना, छोड़ देना. उससे क्या हो जाएगा, वो टॉप लेयर जो सॉइल है उसको धीरे धीरे वहां से बहा के लेके चला जाएगा. ओवर ग्रेजिंग, जब कैटल जो हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं या फिर दूसरे जो एनिमल्स भी वो क्या करें, जरूरत से ज्यादा उस जगह को ग्रेस कर ले, उस जगह के प्लांट्स को या फिर ग्रास को क्या कर ले, खा ले. तो वहां से क्या होगा, वो रूट्स धीरे धीरे चली जाएंगे और रूट्स के जाने से क्या होगा, वो सॉइल वाटर या फिर विंड के इफेक्ट से इरोड होने लगेगी. द नेक्स्ट वन इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो केमिकल या हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जब वो छोड़ देते हैं ऐसी जमीनों पे तो क्या होता है, धीरे धीरे उस टॉप लेयर सॉइल को वो खत्म कर देती है. उसका इफेक्ट जो फर्टिलिटी वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पूरा एंड हो जाता है. देन कंस्ट्रक्शन. नो डाउट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, बहुत ज्यादा खोदते हैं लोग या फिर बहुत ज्यादा क्या होने लग जाता है उस एरिया में. दूसरे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होने की वजह से वो सॉइल धीरे धीरे वहां से हटती चली जाती है, वहां पे पूरा सीमेंटेड फॉरेस्ट बनने लग जाते हैं. So these are all about human causes of erosion. Now there जब अगर causes है तो no doubt उनके conservative measures भी होंगे. So let us discuss how can we prevent erosion caused by human activities. Now you have to write just opposite of these points. First, afforestation. Grazing, mining. Controlling the grazing. Controlling the mining. Control mining. Irrigation. Control mining. Controlled mining. माइनिंग हो पर कंट्रोल्ड प्रॉपर तरीके से हो. Control the construction. Then what was the next point? Irrigation. Proper irrigation. Proper management. Proper management of construction. Proper management of construction. Then management for construction. Managing construction. Then proper management of industrial waste. Treating, or you can say treatment, proper treatment for industrial waste. These are all conservative measures through which we can control erosion. So in this way we can control the erosion caused by human activities. So this is it about the chapter. The chapter is completing here. Just write it down fast. इसका टेस्ट ले लो अभी हो रहा है.